A very good morning, dear students. We have completed all the topics that are going to come in your first unit test, right? So only two topics are left. There are paragraph writing and words easily confused. So these two topics are going to be the main topic of today's class. Okay, these two topics I am going to explain. So let's start with paragraph writing. We all know what is a paragraph, right? Starting line is there, then some more lines which are written on that topic only. There is a certain topic and some lines are written on that topic, and paragraphs are shorter than essays, right? So let us discuss how to form paragraphs, or what are the elements, what are the things, important things that you should keep in mind while writing a paragraph, right? So let's discuss that. First of all, there is a definition of paragraph. Look, a paragraph is a piece of writing that consists of several sentences that present and develop one main idea, theme or subject. Okay, so this is only, I told you that a paragraph is a piece of writing. Okay, it's a piece of writing, एक लिखा हुआ एक कोई पार्ट, जिसमें क्या होता है, जिसमें कुछ लाइंस होते हैं किसके बारे में, किसी एक टॉपिक, सब्जेक्ट या आइडिया के बारे में. ओके, किसी एक थीम के बारे में, कोई एक टॉपिक होता है और उसी टॉपिक को एनहांस करके जब हम ज्यादा इंफॉर्मेशन डालते हैं तब उसे पैराग्राफ कहते हैं. ठीक है, और पैराग्राफ ऐसे से छोटा होता है लेकिन. ठीक है, तो देखो क्या एलिमेंट हैं. द एलिमेंट्स ऑफ पैराग्राफ आर लिस्टेड बिलो. द की एलिमेंट्स, द मेन एलिमेंट्स दैट आर important while writing paragraph. Okay, you should keep in mind about the things, about the elements. So they are topic sentence. First one is topic sentence. Okay, topic sentence means this is the first sentence of the paragraph. Okay, the first sentence of the paragraph. What is that? Topic sentence. It includes the topic of the paragraph, right? You must have a topic while writing a paragraph, no? So topic sentence will be there. First sentence. It introduces the basic idea of the paragraph and motivates the reader to want to read more. So it introduces the idea that you are going to, or the first line of the paragraph, the topic sentence of the paragraph tells you about what you are going to read in this paragraph. Okay, about the topic, about the subject matter of the paragraph that you are going to read in that paragraph. Okay, so topic sentence tells us about the subject, idea or topic of the paragraph. Okay, and it is also some it also contains some amazement, like it must be interesting. Okay, the topic sentence must be interesting because it motivates the reader. Okay, if the the topic sentence, the starting sentence will be interesting, then the reader will get interest, no, to read the paragraph. Otherwise, if the topic sentence is not good, then the impression will be bad that this paragraph is not so interesting or not so valuable, so reader will not read that. So the topic sentence must be interesting or valuable, right? And it should motivate the reader to want to read more. Means the topic sentence must be that motivational that the reader must have a keen interest to read the paragraph. That let's read the paragraph. Okay, the first sentence is motivating, so the paragraph must be valuable, so read it. Okay, so the first sentence must be motivating. Next, supporting sentence. So what is a supporting sentence? These form the body of the paragraph. Okay, the body, supporting sentences. Supporting sentences, which what they are supporting? They are supporting the topic sentence. Okay, means topic sentence तो topic के बारे में बताता है ना, subject के बारे में, और supporting sentences क्या करते हैं? They form the body of the paragraph. पूरा paragraph जो है उसका जो body होता है, हाँ, बीच का portion जहाँ पे क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन होता है. Okay, this is the body of the paragraph. They prove
explain, develop or support the topic sentence, right? They prove, explain, develop और सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस को ही ये बड़ा करके एक्सप्लेन करता है, प्रूव करता है, डेवलप करता है. ठीक है, टॉपिक जो मतलब जो सब्जेक्ट है उसी को ये एक्सप्लेन करता है. ओके, एंड सपोर्ट, तो हम लोग जो टॉपिक है उसी के सपोर्ट में बॉडी में लिखते हैं ना. अगर टॉपिक कुछ और दिया है और बॉडी में कुछ उसके अगेंस्ट लिखेंगे, ऐसे थोड़ी होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक जो देते हैं उसी के सपोर्ट में उसी को एक्सप्लेन करते हैं, उसी को डेवलप करते हैं और उसी को प्रूफ करते हैं बॉडी में, है ना. दे गिव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मेन आइडिया थ्रू एग्जाम्पल्स एंड स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पॉइंट्स. सो दे गिव this body, the body or the supporting sentences, supporting lines give more information about the topic that you are going to read in the paragraph, right? And they also give strong and convincing points. Like if you say that the if your topic is something, then if you need to prove that what you are going to say in the topic, right? You need to prove your topic by strong examples. Okay, strong examples and convincing points, right? You have to convince, मतलब तुमको प्रूफ करना पड़ेगा, तुमको कन्विंस करना पड़ेगा रीडर को. तुम्हारा जो टॉपिक है, तुम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हो वो पॉइंट टू पॉइंट है कि नहीं, ये सब तुमको इसी बॉडी में सपोर्टिंग सेंटेंसेस में तुमको प्रूफ करना होता है. ओके, विथ स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स एंड कन्विंसिंग पॉइंट्स. ओके, वो युक्तिगत है कि नहीं वो तुमको बताना पड़ता है. नेक्स्ट इज क्लोजिंग सेंटेंस. द लास्ट पॉइंट इज क्लोजिंग सेंटेंस. तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ योर पैराग्राफ, राइट? दिस रिस्टेट्स द टॉपिक सेंटेंस इन डिफरेंट वर्ड्स. तो इस लास्ट सेंटेंस में हम लोग उस टॉपिक के बारे में ही थोड़े अलग शब्दों में लिखते हैं. ठीक है, लगभग किसी चीज का कंक्लूजन और उसका स्टार्टिंग, मतलब टॉपिक सेंटेंस या फिर यू कैन से द स्टार्टिंग ऑफ द एसे और पैराग्राफ, लगभग दोनों सेम होते हैं, कंक्लूजन और जो शुरुआत वाला और खत्म वाला, लास्ट वाला. ठीक है, तो दिस रीस्टेट्स लाइक दैट ओनली. क्लोजिंग सेंटेंस रीस्टेट्स द टॉपिक इन अदर वर्ड्स. ओके, मतलब सेम सेंटेंस तो नहीं लिख सकते दोनों में, लेकिन सेम बात को अलग भाषा में, मतलब अलग टॉपिक में, अलग वर्ड्स में लिख सकते हैं. ठीक है, इट इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ. हाँ, ये पैराग्राफ का लास्ट सेंटेंस होता है. एंड क्लियरली इंडिकेट्स द एंड ऑफ द पैराग्राफ. एंड इस सेंटेंस को पढ़ के ही हमें लगेगा कि यहाँ पर कंक्लूड किया हुआ है पैराग्राफ को, मतलब पैराग्राफ यहाँ पर खत्म होता है. ठीक है, इस सेंटेंस को पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा. क्लोजिंग सेंटेंस जो होता है, कंक्लूजन जो होता है, मतलब पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है उसी को लास्ट में डिस्कस किया जाता है एक छोटे से लाइन में, छोटे से सेंटेंस में. ठीक है, तो इसको पढ़ के आपको पूरा पैराग्राफ का जो कंक्लूजन है वो समझ में आ जाएगा कि मेन आइडिया क्या है. ठीक है, तो मेन आइडिया फर्स्ट सेंटेंस में बताता है और सेकंड सेंटेंस में, बस वर्ड्स डिफरेंट होते हैं. ओके, सो दिस इज द क्लोजिंग सेंटेंस. टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंसेस एंड क्लोजिंग सेंटेंस. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पैराग्राफ दैट मस्ट बी. ओके, नाउ लुक, now write a paragraph about 100 words for each of these situation or clues. There are number 1 and number 2 clues and situations are there. You need to form a paragraph. First one is, from these sentences identify the topic sentence, first supporting sentence, then second supporting sentence, then third supporting sentence and the closing sentence. There are some sentences which are jumbled. They are not serially written. Okay, you need to identify which one is which must be the first, topic sentence. First one is topic sentence, then first, second, third supporting sentences and the last sentence. You will have to choose and then expand and rewrite them as a cohesive paragraph. And इसको बाद में बड़ा करके पैराग्राफ बनाकर लिखना है. ठीक है, तो सेंटेंसेस पढ़ते हैं. Let me tell you more about her. This cannot be first sentence, right? Topic sentence, right? She lives near my house. I think she is the greatest friend I have ever had. My best friend is Gayatri. We always have fun together. So, ये पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी कि this is the first sentence or the topic sentence.
किसके बारे में है ये सब? यही बेस्ट फ्रेंड गायत्री के बारे में ना. सो दिस इज द टॉपिक. सो दिस इज द टॉपिक सेंटेंस. माई बेस्ट फ्रेंड इज गायत्री. ओके, सो द सेकेंड supporting sentence will be this. Let me tell you more about her. Okay, मेरी बेस्ट फ्रेंड गायत्री है, उसके बारे में मैं थोड़ा और बताती हूँ. तो दिस इज द लिंकिंग लाइन, राइट? मतलब ये इसके साथ, इसके बाद यही लाइन सुइटेबल है. ओके, देन माई बेस्ट फ्रेंड इज गायत्री. लेट मी टेल यू मोर अबाउट हर. शी लिव्स नियर माई हाउस. Okay, she lives near my house. Second supporting line is she lives near my house. Okay, first one is my best friend is Gayatri. Then let me tell you more about her. Then she lives near my house. उसके बाद we always have fun together. Okay, this is the third supporting line. Okay, then I think she is the greatest friend I have ever met. आई हैव एवर हैड. तो ये सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि ये क्लोजिंग सेंटेंस है, राइट? हाँ, खत्म करने वाला है. आई थिंक शी इज द ग्रेटेस्ट फ्रेंड आई हैव एवर हैड. सो दिस इज द एंडिंग और द, यू कैन से, व्हाट वाज दैट? क्लोजिंग सेंटेंस, कंक्लूजन, राइट? क्लोजिंग सेंटेंस. द टॉपिक सेंटेंस इज द माई बेस्ट फ्रेंड इज गायत्री. Then the three supporting sentences are, let me tell you more about her. She lives near my house. We always have fun together. I think she is the greatest friend I have ever had. This is the closing sentence. And so this is the structure of your paragraph. Now you need to write more. You need to expand this idea, which is my best friend. Topic is my best friend. इसके ऊपर आपको मतलब इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको इसको बड़ा करके एक पैराग्राफ बनाना है. ठीक है, 100 words. Word quantity is there. Now second one is write a paragraph with the help of these clues. There are some clues. Okay, you need to identify that which story this is telling. Museum, deserted, burglars, look into, Egyptian section, eyes of the Sphinx, glowed in the dark, sound of siren, suddenly crash, a narrow escape, investigation, nothing found missing. So after reading this we can understand that it is telling about a museum. Okay, a museum is there which is deserted, जो खाली कराया गया था. ठीक है, मतलब वहां पर लोग नहीं है. वहां पर burglars, जिसका क्या मीनिंग है? चोर डकैत. ओके, लुक इनटू इजिप्शियन सेक्शन, तो खाली म्यूजियम में जो क्या घुसा, कौन घुसा है? चोर. उन्होंने क्या देखा? इजिप्शियन सेक्शन में देखा आइज ऑफ द स्फिंक्स. ठीक है, ये बहुत मशहूर है. एक स्फिंक्स एक क्या कहते हैं, एक मूर्ति है इजिप्ट का एक मूर्ति है जिसमें चेहरा होता है वो इंसानों का. ठीक है, और बॉडी इज ऑफ लायन. ठीक है, जो लायन जमीन में बैठा हुआ है, ऐसा एक मूर्ति है. एक लायन जमीन में बैठा हुआ है और उसका लायन का सर नहीं है, लायन का सर नहीं है, वो इंसानों का सर लगाया हुआ है लायन के बॉडी में. ओके, सो ये एक बहुत कीमती पुरानी मूर्ति है. तो ये स्फिंक्स की आंखें जो हैं वो आईज ऑफ द स्फिंक्स वो ग्लो कर रही थी. ठीक है, कुछ ऐसी मेटल से बनी होंगी जो ग्लो कर रही थी डार्क में. ठीक है, अंधेरे में. साउंड ऑफ सायरन, तभी सायरन बजी. सडन क्रैश हुआ, मतलब अचानक से कोई एक हड़बड़ी सी मच गई. ठीक है, क्रैश तो वैसे दुर्घटना होती है, तो अचानक से कोई, मतलब जैसे कि चोरों में अचानक सायरन बजने से क्या हुआ? चोरों में दुर्घटना सी मच गई. उसके बाद ए नैरो एस्केप, मतलब वो लोग जान बचा के भाग गए. फिर इन्वेस्टिगेशन हुआ, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुआ. फिर नथिंग फाउंड मिसिंग, फिर वहां पे कुछ भी मिसिंग नहीं हुआ, मतलब चोरी किया हुआ नहीं था, मतलब सब अपनी जगह पे था. ठीक है, कुछ भी गायब नहीं हुआ था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था. तो इसको समझ में पढ़ के आपको ये समझना है कि एक म्यूजियम के बारे में लिखना है जहाँ पे चोर घुस आए, जो खाली कराया गया था, और जहाँ पर चोर घुस आए. उसके बाद वहां पर उन्होंने इजिप्शियन सेक्शन में जाकर स्फिंक्स के आईज चुराने की कोशिश की, लेकिन वो आईज ग्लो कर रही थी. फिर अचानक से किसी कारण वहां पर सायरन का आवाज आया. ठीक है, जैसे कि वो इतने बड़े म्यूजियम में तो सायरन लगाया हुआ होगा ना चोरी के लिए, तो सायरन लगाया हुआ था. अचानक से सायरन की आवाज आई. फिर
वहां पर भगदड़ मच गई चोरों के बीच, फिर वो लोग जान बचाकर भाग गए, फिर उसके बाद वहां पुलिस पहुंची, ठीक है। सायरन बजने के बाद समझ लो कुछ ही देर में सायरन बजने के बाद तो पुलिस वहां पर पहुंच जाएगी ना, तो फिर पहुंचने के बाद वो चोर तब तक वहां से भाग निकले थे। फिर वहां पर इन्वेस्टिगेशन हुई और फिर कुछ भी गायब नहीं हुआ था, चोरी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इसी चीज को आपको अपने हिसाब से कुछ लाइंस ऐड करके स्टोरी का रूप देना है, ठीक है, और एक पैराग्राफ लिखना है। तो प्लीज ट्राई इट होम, ओके। नाउ लुक, देयर आर सम मोर topics given to you to write in paragraph, okay. Study the word web and then write it in the form of paragraph. So here is the topic, look, holidays, okay. So this is the format or the structure, okay, how that will help you to write the paragraph on holidays. Topic is holidays, so you can write with whom I wish to go, किसके साथ जाना चाहती हूँ मैं, वेयर आई विश टू गो, कहाँ जाना चाहती हूँ हॉलीडे में, फिर थिंग्स एंड एक्टिविटीज आई विल डू देयर, वहां जाके मैं क्या क्या करना चाहूंगी, क्या करूंगी, देन व्हाट वुड मेक इट स्पेशल, और क्या कर सकते हैं हॉलीडे को और स्पेशल बनाने के लिए। तो दीज आर द सम टॉपिक्स दैट यू कैन राइट और यू कैन यूज टू राइट and to make a paragraph, okay, on the topic holidays. So practice it, okay. These are the things that you can write and you'll make a paragraph, okay. Now imagine you are inside a magical cave. Write a paragraph titled Inside a Magical Cave, elaborating the following points. So imagine that you are in a magical cave, एक जादुई गुफा में हो, ठीक है। तो तुम वहां पर जाकर तुम्हारे अंदर तुम क्या क्या करोगी, ठीक है। इस टाइटल के ऊपर क्या नाम है टाइटल का, इनसाइड ए मैजिकल केव, तो ये टाइटल होगा तुम्हारे पैराग्राफ का, ओके। एंड व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू मतलब राइट इन द पैराग्राफ, ओके। यहाँ पर तुमको हेल्प के लिए ये टॉपिक मतलब हेडलाइन भी दिए गए हैं। हाउ डिड यू रीच देयर, तुम वहां कैसे पहुंचे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन, वो कहाँ पर था वो गुफा, ठीक है, उसका लोकेशन। योर फीलिंग्स, तुम क्या फील कर रहे थे तब, वहां कैसे गए, जाने के टाइम में तुम क्या फील कर रहे थे, जाके तुमने क्या फील किया, फिर कैसे वापस आए, या फिर व्हाट हैपन नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ। ये सब बातें तुमको हेल्प करेंगी, मतलब ये सब बातों का तुमको लिखना है, इन सब चीजों का जवाब तुमको पैराग्राफ में लिखना है, तब एक पैराग्राफ बन जाएगा। ये है तुम्हारे हेडलाइन, समझ लो, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में अगर तुम एक्सप्लेन करोगे तो अपने आप एक पैराग्राफ बन जाएगा। तो प्लीज ट्राई इट, ओके। इनसाइड ए मैजिकल केव, इसके उस टॉपिक पर पैराग्राफ लिखो। देयर आर सम मोर टॉपिक्स प्रोवाइडेड टू यू दैट यू कैन यूज टू राइट paragraph for practice, right? So please practice them at home. And here we have completed the chapter, the topic paragraph writing. So I hope you will have all have understood all the things that I have mentioned here. So please practice it at home, okay? And now we are going to discuss the next topic, that is words easily confused. So here is your words easily confused, okay. There are some words which we get confused with, okay. There are the maybe spelling or the pronunciation is different and the meaning is different. So let's discuss that what is the meaning of these words, okay. So first one is ambiguous. So the meaning is not very clear, okay. When you are not very clear about something, right, I am not very clear with my thinking, with my decision, or with my जो मैं बोल रही हूँ, जो कर रही हूँ, उसके बारे में अगर ज्यादा क्लियर ना हो, then it is known as ambiguous, okay. The prisoner's sentence is the prisoner's statement is rather ambiguous in places. देखो, तो ये मतलब ये जो कैदी है उसका स्टेटमेंट समझ लो क्लियर नहीं है, मतलब वो कुछ भी क्लियर नहीं बता रहा है, तो दिस इज नोन एज एम्बिग्यूअस, ठीक है। उसका स्टेटमेंट कहीं भी क्लियर नहीं है। Next, ambivalent. So what is the meaning of the word ambivalent? Having a mixed feeling, okay. When you are confused, mixed feeling, okay. After what he has done, I was a little ambivalent as to how I should behave. उसने जो किया इसके बाद में एम्बिवेलेंट हो गई थी, मतलब थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी मैं। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग मतलब मेरे अंदर एक मिक्स्ड भावना, मिक्स्ड फीलिंग थी, मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं, मैं क्लियर नहीं थी, कंफ्यूज थी, ओके। तो कैसे बिहेव करना है इस बात का मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या बिहेव करूं या क्या रिएक्ट करूं, ओके। नेक्स्ट वन इज अप्रेज. डिसाइड द क्वालिटी और वैल्यू.
सो अप्रेज मीन्स किसी की क्वालिटी के बारे में विश्वास करना या वैल्यू के बारे में समझना कि ये वैल्यूएबल है या नहीं, ये क्वालिटी है या नहीं, ऐसे डिसाइड ना कर पाना। ठीक है, मतलब तुम किसी का डिसाइड करना या फिर डिसाइड करना कि वो क्वालिटी उसमें है और या वैल्यू उसमें है, इस बात का डिसीजन। किसी के बारे में कुछ अनुमान लगाना, यू कैन से आंकना। इट वॉज डिफिकल्ट टू अप्रेज हर सुइटेबिलिटी फॉर द जॉब। तो इस जॉब के लिए उसकी काबिलियत अप्रेज करना मुश्किल था, मतलब इस जॉब के लिए वो सुइटेबल है या नहीं, इस बात का फैसला करना मुश्किल था। सो दिस इज ओनली नो डिसाइड द क्वालिटी और वैल्यू। Appraise means decide the quality or value, that whether his quality is up to mark or not. Okay, so the appraise means decide the quality or value of someone or something. Okay, next is apprise, meaning inform. Have they apprised you of the changes in their circumstances? So inform, you know ना, inform करना, किसी को बताना, किसी बारे में जानकारी देना. So have they apprised you of the changes in their circumstances? क्या उन्होंने अपने circumstances, अपने situation के changes के बारे में आपको बताया, inform किया? Then it is apprised. ठीक है. Next, censor. Examine and remove anything that is considered offensive. So censor करना means किसी चीज को, मतलब किसी चीज को का परीक्षण करना, उसको एग्जामाइन करना और उसमें अगर कुछ गलत है, ऑफेंसिव है, तो उसको हटाना. ठीक है, कुछ चेक करके उसमें से गलत चीज को हटाना, इसको कहते हैं सेंसर करना. जैसे हम लोग फिल्मों में बोलते हैं ना, कोई फिल्म ने सेंसर नहीं किया, मतलब उसमें कुछ ऐसी गलत बात थी जो फिल्म के गवर्नमेंट ने मतलब मना कर दिया. ठीक है, ऐसे कुछ. तो examine or remove anything that is considered offensive. His latest novel was censored by the government. तो उसके नए नॉवल को गवर्नमेंट ने सेंसर कर दिया. was censored by the government, मतलब उसमें कुछ कमी थी तो इसीलिए उसको हटाया. ठीक है, his latest novel was censored by the government. तो यही होता है कि एग्जामाइन करके गलती को हटा देना. ठीक है, कुछ गलत हो तो उसको हटा देना, उसको सेंसर कहते हैं. नेक्स्ट इज सेंश्योर. ऑफिशियली क्रिटिसाइज, किसी को मतलब सब ऑफिशियली, ऐसे मतलब गाली गलौज देना नहीं, लेकिन ऑफिशियली मतलब एकदम फॉर्मली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की गलती बताना. ठीक है, जैसे कि द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेयर सेंश्योर्ड फॉर हैविंग एक्सेप्टेड ए ब्राइब. तो कमिटी मेंबर्स को सेंश्योर किया गया, मतलब ऑफिशियली उनको क्रिटिसाइज किया गया, बेइज्जत किया गया. किस लिए? क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली. ब्राइब मतलब रिश्वत. तो उन्होंने कमिटी मेंबर्स को सेंश्योर किया गया क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उन्होंने रिश्वत ली. ठीक है. नेक्स्ट इज डेफिनिट. तो डेफिनिट तो पता ही होगा आपको, निर्दिष्ट, क्लियरली, फिक्स्ड. ठीक है, क्लियरली और फिक्स्ड. शी सेड दैट शी would give me a definite answer by tomorrow. उसने कहा कि वो मुझे कोई एक फिक्स्ड क्लियर जवाब कल दे देगी. तो डेफिनेट मतलब क्लियर या फिक्स्ड. ओके. एंड नेक्स्ट इज डेफिनेटिव. सो व्हाट इज दैट, व्हाट इज द मीनिंग? डेफिनेटिव, फाइनल या डिसीजिव, मतलब एकदम फाइनल, यू कैन से निर्णायक. ओके, फाइनल या डिसीजिव कोई चीज, मीनिंग एकदम अंतिम या निर्णायक. ठीक है, एकदम फाइनल. He thinks that he has written the definitive book of Mother Teresa. तो उसको लगता है कि उसने एक निर्णायक बुक लिख लिया है मदर टेरेसा के ऊपर. ठीक है, मतलब उसका ये फाइनल बुक है, मतलब इम्पोर्टेंट, फाइनल. ठीक है, डिसीजिव बुक है, डेफिनेटिव. ठीक है, तो ये होता है मीनिंग डेफिनेटिव का. नेक्स्ट इज डिसेंट. सो डिसेंट मीन्स फेयरली गुड. ओके, अच्छा. ठीक है, मतलब लाजमी. That is a decent price for a used mobile phones. So this is the decent price, मतलब this is fairly good price for a used mobile phone. मतलब एक used mobile phone के लिए ये प्राइस ठीक है. ठीक है, ये प्राइस लाजमी है. ठीक है, इतना मतलब इतना देने से हो जाएगा. तो ये decent price. ठीक है, fairly good. नेक्स्ट इज डिसेंट. डिसएग्री. ठीक है, मतलब किसी से एग्री न करना. नेक्स्ट, आई मीन सेंटेंस. I am afraid this is where I dissent from the general opinion.
तो मुझे डर है क्योंकि यही मतलब ऐसी ही बातों में मुझे जनरल ओपिनियन से मैं एग्री नहीं कर पाता हूँ। मतलब लोग जो कहते हैं उस बात से मेरी बातें नहीं मिलती हैं, मैं एग्री नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, सो डिसएग्री मीन्स डिसेंट, ठीक है, किसी से एग्री ना करना। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मीन्स कॉशियस, वाइज, ठीक है, चालाक होना, सतर्क होना, सावधान होना। ठीक है, ही इज वेरी डिस्क्रीट एंड विल नेवर लेट द सीक्रेट आउट। तो वो बहुत सतर्क है, सावधान है, इसीलिए वो कभी सीक्रेट को आउट नहीं होने देगा। तो डिस्क्रीट का मीनिंग होता है कॉशियस होना, सतर्क होना, वाइज होना। ठीक है, सतर्क, सावधान होना। नेक्स्ट इज डिस्क्रीट, सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट। तो देखो सेम डिस्क्रीट ये भी है लेकिन स्पेलिंग इज डिफरेंट, सो यू कैन गेट कंफ्यूज, राइट। दिस डिस्क्रीट मीन्स सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, अलग होकर। ठीक है, देयर आर 4 डिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स विद इन द क्लास। सो क्लास के अंदर ही 4 अलग अलग ग्रुप हैं, मतलब उन लोगों में भेदभाव है। ठीक है, तो ये अलग ग्रुप है। तो ये डिस्क्रीट का मीनिंग होता है सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, अलग। ठीक है, डिफरेंट। नेक्स्ट इज ऑफिशियल। सो अप्रूव्ड ऑफ और डन बाय समवन इन ऑथोरिटी। तो ऑफिशियल का मीनिंग पता ही है ना आपको, ऑथोरिटी से जो होता है। अप्रूव्ड ऑफ और डन बाय मतलब जो ऑथोरिटी जो अप्रूव करे या ऑथोरिटी जो करे वही ऑफिशियल होता है ना। यू हैव टू गेट ऑफिशियल परमिशन टू बिल्ड ए हाउस। तो घर बनाने के लिए तुम्हें एक ऑफिशियल परमिशन लेना पड़ेगा। तो किसी जगह का किसी भी बात का जो ऑफिशियल जो अथॉरिटी होता है कहीं जगह का, उसी अथॉरिटी का जो परमिशन वगैरह या फिर अथॉरिटी जो करता है वही ऑफिशियल होता है ना। तो तुम्हें घर बनाने के लिए ऑफिशियल परमिशन लेना होगा, अथॉरिटी से परमिशन लेना होगा, तो इसी को कहते हैं ऑफिशियल। नेक्स्ट इज ऑफिशियस। ऑफिशियस का मीनिंग है टू ईगर टू बॉस पीपल, मतलब हुक्म चलाने पर एकदम कुछ लोग होते हैं जो हुक्म चलाना ज्यादा पसंद करते हैं, उन्हें कहते हैं ऑफिशियस। ठीक है, जो हुक्म चलाना, लोगों पर अपना रौब जमाना पसंद करते हैं। देखो, हिज मदर इन लॉ इज सो ऑफिशियस दैट ही डज नॉट लेट हर विजिट हिज हाउस। तो उसकी मदर इन लॉ, उसकी सासू माँ कैसी हैं? ऑफिशियस हैं, मतलब थोड़ी बॉस टाइप है, हमेशा हुक्म चलाना पसंद करती हैं हर जगह। तो इसीलिए वो अपने सासू माँ को घर आने नहीं देता। ओके, अपने घर आने नहीं देता, बुलाता भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेच्यू। तो स्टेच्यू आपको पता है, एन इमेज मेड ऑन इन स्टोन और मेटल का या स्टोन का बना हुआ कोई इमेज, कोई मूर्ति, उसे स्टेच्यू कहते हैं ना। शी स्टूड एज स्टिल एज ए स्टेच्यू। वो स्टेच्यू की तरह खड़ी रही, स्टिल, चुपचाप। ठीक है, तो ये स्टेच्यू तो आपको मीनिंग पता है। नेक्स्ट इज स्टेच्योर। सो द डिग्री टू व्हिच समवन इज एडमायर्ड। स्टेच्योर मतलब एक लेवल, मतलब कि एक डिग्री कि एक इंसान बहुत एडमायर होता है। मतलब कितना एडमायर हो सकता है, मतलब उसका एडमायर मतलब तारीफ, किस हद तक, मतलब किस एक स्टेच्योर का मीनिंग है कि बहुत ज्यादा एडमायर करना किसी को। ठीक है, किसी की तारीफ करना। नेक्स्ट सेंटेंस इज एज अ साइंटिस्ट ही इज ए मैन ऑफ इंटरनेशनल स्टेच्योर। तो एक साइंटिस्ट के रूप में वो उसे कहा, मतलब इतना वो काबिल है, इतना एफिशिएंट है कि वो इंटरनेशनल स्टेच्योर, मतलब बाहर के लोग भी उसे इस बात के लिए मानते हैं, एडमायर करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा एडमायर होते हैं बाहर भी, इंटरनेशनल में। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेच्यूट। सो स्टेच्यूट क्या है? ए लॉ दैट हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट और काउंसिल। स्टेच्यूट है कानून, ठीक है, जो पार्लियामेंट या काउंसिल ने पास किया है, ऐसा कोई लॉ, कानून, उसे कहते हैं स्टेच्यूट। यू आर रिक्वायर्ड बाय स्टेच्यूट टू डू दिस, मतलब तुम्हें बाय लॉ, कानूनन तुम्हें ये करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड बाय स्टेच्यूट टू डू दिस, मतलब तुम्हें कानूनन ये तुमको ये आदेश मिला है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज वोसिफेरस। ठीक है, हैविंग लाउड एंड स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड ओपिनियंस, मतलब जोर से और मतलब स्ट्रांगली अपनी बात कहना। ठीक है, स्ट्रांगली एक्सप्रेस्ड ओपिनियंस, अपना ओपिनियन बताना, अपनी बात एकदम स्ट्रांगली कहना। तो देखो, शी वॉज वोसिफेरस इन हर क्रिटिसिज्म ऑफ हिम, मतलब वो जोर से एकदम स्ट्रांगली अपनी बात को कह रही थी और
वो जो क्रिटिसिज्म कर रही थी वो मतलब वो किसी को क्रिटिसिज्म कर रही है और मतलब क्रिटिसाइज कर रही है, और क्रिटिसाइज करते हुए अपनी बात को एकदम स्ट्रांगली कह रही है। इसका मीनिंग होता है वॉसिफेरस, ठीक है, चिल्लाकर अपनी बात कहना स्ट्रांगली, ठीक है। नेक्स्ट इज वोरेशियस। देखो, you can get confused. So voracious means eating or wanting large quantities of food. मतलब ज्यादा खाना मांगना और खाना, ठीक है, इसे कहते हैं वोरेशियस, राक्षस के जैसे खाना, ठीक है। देखो, द एपेटाइट ऑफ मोस्ट चिल्ड्रेन सीम्स वोरेशियस। तो ज्यादातर बच्चों में क्या होता है कि बच्चों को देखना क्या होता है, वो लोग ज्यादा मतलब जितना खाते नहीं है, लेकिन खाने को देख के मतलब लालच ज्यादा दिखाते हैं कि खाएंगे और खाएंगे ऐसे दिखाते हैं, है ना। तो इसी को मतलब यही सेंटेंस क्या होगा, ज्यादातर द एपेटाइट ऑफ मोस्ट चिल्ड्रेन सीम्स वोरेशियस, मतलब ज्यादातर बच्चे बिहेव करते हैं कि वो वोरेशियस जैसे बिहेव करते हैं, ठीक है। तो वोरेशियस क्या होता है, जो ईटिंग एंड वांटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फूड, ज्यादा खाना मांगना या खाना, ठीक है, ऐसा बिहेव करते हैं कुछ बच्चे, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे दिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ वर्ड्स दैट यू कैन गेट कंफ्यूज्ड विथ। सो आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंड यू हैव अंडरस्टूड इट, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन प्लीज कॉन्टेक्ट मी। और ये स्पेलिंग्स याद कर लें फॉर एग्जाम और यूनिट टेस्ट ऑल्सो। तो यू कैन learn this meaning of the sentence, words and sentences, okay, and for today the class is over. Thank you.